Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स पेंटिंग बुक वन का लेसन नंबर 2 हिस्ट्री एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट फ्रॉम 7th AD टू 12th AD का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, today we are going to study next topic of chapter 2 which is Krishna supporting Mount Govardhan. Before starting this topic, let's see the figure related to this topic. This is the figure of Krishna who support Mount Govardhan. Title of this topic is Krishna supporting Mount Govardhan. Medium is also shown. Date Hoysala period. Finding site Belur. Size 3 feet and artist is even unknown. So let's start. General description about Krishna supporting Mount Govardhana. Temple architectures were one of the important activities during Hoysala period. Besides the elaborate temple architectures, each temple of this period was decorated with sculptures which formed an intrinsic part of the architecture. The Hoysala style is named after one of the famous dynasties of the Deccan, which emerged around the middle of the 11th century and is generally considered to have come to an end in the mid 14th century. The capital of the Hoysala kings was Dwar Samudra, the modern Halibut. Hoysala style is unique in its own way and is highly characterized. The earliest major Hoysala temples are at Belur. Hoysala sculptures show deep carving and understanding soft width of the body contours, delicate and intricate designs. Deep carving and undercutting is facilitated by the soft stone. It gives the rich surface textures and is responsible for the intricate and detailed scenes. This Krishna sculpture is one of the best examples of the delicate and intricate Hoysala carving. The whole incident has been shown in layers. The obvious placement of Krishna as the central figure with human beings and cattle in different layers present an interesting way of narration. Though Krishna has been shown in a heroic form, his stance of standing and the rhythmic limbs bring softness in whole composition. Very interesting to notice in is the liveliness of the animal figures with heavy breasts and buttocks, elaborate jewelry, typical Indian hairstyle, the composition in an example of typical Hoysala period style, where the intricate carvings of the stone shows the mastery of the artist. तो जो ये टेम्पल का जो वास्तुकला है वो होयसाला के काल का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इन सब के अलावा उन्होंने मंदिर का जो वास्तुकला था उसको उन्होंने विस्तृत रूप दिया था। जितने भी मंदिर थे उस काल के उन्हें मूर्तियों से सजाया गया था, जो कि उस वास्तुकला का एक बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक, हम लोग देखेंगे कि एक स्वाभाविक उसका चिन्ह है, उसका एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो होयसाला स्टाइल है वो डेक्कन के प्रसिद्ध जो डायनेस्टी थे उनके नाम के बाद पड़ा है, जो कि कहाँ से इमर्ज हुए थे, मिडल ऑफ द 11th सेंचुरी से उन्होंने अपना उनका इमर्जन हुआ था। और ये जनरली कंसीडर किया जाता है कि इनका जो एंड है वो मिड 14th सेंचुरी में हुआ था, यानी कि 14वीं जो शताब्दी है उसके बीच में हुआ था। इसका जो कैपिटल था डेक्कन का वो होयसाला के जो राजा है द्वार समुद्र, उनका जो मॉडर्न हेल्बिट था उनके यहाँ था। मॉडर्न हेल्बिट जो हिसाला का स्टाइल था बहुत ही अलग था, अपनी अंदाज में उसका स्टाइल था और वो बहुत ही ज्यादा हाईली कैरेक्टराइज था उसका आर्किटेक्चर। अर्लीस्ट मेजर जो हिसाला का जो मंदिर है ये बेलूर में है। हिसाला का जो मूर्ति है उसमें बहुत ही ज्यादा डीप कार्विंग और अंडर कटिंग दिखाया गया। उसमें जो रिथम है बॉडी का कंटूर है वो सॉफ्ट है,
साथ में जितने भी उसके ऑर्गन्स है या जो डिजाइन है वो डेलिकेट है और इंट्रिकेट है। जो कार्विंग स्टाइल है वो डीप है और ये इसको किस के द्वारा फैसिलिटेट किया गया है, सॉफ्ट स्टोन के द्वारा। इसका जो कार्विंग वो सॉफ्ट स्टोन पे किया गया है। ये हम लोग को दिखाता है कि कैसे टेक्सचर, सॉफ्ट टेक्सचर पे जो सरफेस जो टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक बहुत ही ज्यादा डिटेल सीन किसी भी आर्किटेक्चर और किसी भी स्कल्पचर के बारे में दे सके। इस स्कल्पचर में क्या है कि एक जो कृष्णा का स्कल्पचर है, कृष्णा का मूर्ति है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और डेलिकेट है। इसमें जो होयसाला का जो कार्विंग उसमें बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है कृष्णा के माध्यम से। इसमें जो पूरा घटना है जिसमें जो कृष्णा है वो अपने नन्ही सी उंगली पे गोवर्धन के पहाड़ को उठाते हैं, वो पूरा जो घटना घटा था वो इस वाले डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कृष्णा को दिखाया गया है एक मानव के रूप में और वो सेंटर पोजीशन पे है, और उनका जितना भी और जो साथी है उनको पूरे घटना को एक लेयर्स में दिखाया गया है। और जो प्लेसमेंट है कृष्णा का वो एक सेंट्रल फिगर है और उनके चारों ओर मानव है और जानवर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में वहां पे एक अलग ही इंटरेस्टिंग वे में उनको नरेट किया गया है। कृष्णा को यहाँ पे एक हीरो के रूप में दिखाया गया है जो कि बीचों बीच खड़े हैं, माउंट जो गोवर्धन उसके बीचों बीच खड़े हुए हैं, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। उनका जो रिथमिक लिम्स है वो बहुत ही ज्यादा उसमें सॉफ्टनेस ला रहा है, उनका जो होल कॉम्पोजिशन है बहुत ही अलग है। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो नोटिस करने का क्या चीज है कि जितने भी जानवर है उनका जो फिगर है लगेगा कि वो जीवंत है, मतलब कि वो अभी जीवित है। जितने भी जानवर की फिगर है, उनके जो ब्रेस्ट है या जो बटक्स है बहुत ही ज्यादा हेवी है, उनमें जो ज्वेलरी है वो बहुत ही एलाबोरेट तरीके से, विस्तृत तरीके से उनको पहनाया गया है। और ये जो टिपिकल इंडियन हेयर स्टाइल्स दिया गया है वहां पे जितने भी मनुष्य का फिगर है, और वो एक कंपोजिशन दिखा रहा है कि किस तरह से जो होयसाला पीरियड का जो स्टाइल था उसमें किस तरह से कंपोजिशन बना करके मूर्तियां बनाई जाती थी। और इसका जो कार्विंग है वो एक स्वाभाविक तरीके से की गई है, लगेगा कि जितने भी इसमें जो जानवर या जो मनुष्य वो जीवंत है, वो जीवित है। और ये एक स्टोन के मीडियम से किया गया और उस टाइम के जो आर्टिस्ट है उसमें यह दिखाता है कि उन्होंने कितने मास्टरी कितना हासिल कर लिया था, वो उसमें माहिर हो चुके थे। And here is your in-text question 2.2. Try to solve these questions. Our next topic is Surasundri from Konark. And before beginning this topic, let's see the figure of Surasundri from Konark. Here is the figure of Surasundri, and it is in Konark. Our title of this topic is Surasundri from Konark. Medium is also stone. Date Ganga dynasty 12th century AD. Finding site of this sculpture is Konark, Odisha. Size little more than life size. Means what? किसी का जो मनुष्य है उसका जो लाइफ साइज है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, एंड आर्टिस्ट इज ऑल्सो unknown. So let's begin to study the general description of this topic. The Sun Temple at Konark, one of the best of great Orisian architectures, was built by King Narsimhadev I of the Ganga dynasty in the eastern coast of India near Puri in Orissa. The period saw a different type of sculpture development. The temple is famous for its gigantic structure and larger than life-size sculptures. The larger images, as well of black stone, have a little bit of affinity with later Bengal style of the Pala period. The modeling is tight and the face is broad with smile. The works are robust and have loose plasticity. The sculpture of the temple increases beauty and aesthetic value of the temple. The large sun image and the female musician figures present a different kind of quality in this temple. This little more than life-size female musician is one from the group of similar kind of sculptures. These female musician groups are found on the terraces above the bottom and the middle tiers. They have been shown playing with full confidence and delight.
They are boldly carved. The figures are full of movement and volume. Each one is shown with a different kind of musical instrument. This Surasundari is shown with a drum. In spite of the big face with a smile, the rhythmic actions of the limbs and the slight tilt of the head present of graceful beauty of this drummer. The soft carving of the ornaments in between the breast enhances the softness of the figure. The bends and the curves of the figures present the rhythm. The folds of the draperies and the posture add to rhythm of the fug of this figure. तो हम लोग सन टेम्पल जो कि कोणार्क में स्थित है, हम लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। वो एक बेस्ट आर्किटेक्चर है, ओरिशियन आर्किटेक्चर का वो बेस्ट एग्जांपल है। और ये किनके द्वारा बनाया गया था? राजा नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा। और ये किस वंशज के थे? गंगा वंशज के। और ये हमारे भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे उड़ीसा के पुरी के नजदीक ही इनका निवास था। ये जो पीरियड था उसमें बहुत सारे स्कल्पचर डेवलपमेंट देखे हैं। ये जो मंदिर है वो अपने बड़ी बड़ी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इसका जो मूर्ति का जो साइज है वो मोर देन लाइफ साइज है। इसके जो जितने भी इमेजेस है वो लार्जर है और ब्लैक स्टोन पे कार्व्ड है, ब्लैक स्टोन पे ज्यादातर बनाया गया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि बाद में क्या हुआ था कि इस जो फिगर उसमें आत्मीयता का प्रतीक होता है कि ये आत्मीयता हम लोग से जुड़ा हुआ है। और ये जो फिगर है वो बंगाल स्टाइल जो पाला पीरियड से उनसे भी ये कुछ प्रेरित है, उस टाइप से भी ये बनाया गया। इसका जो मॉडलिंग है, इसका जो टाइट फेस भी ब्रॉड है, चौड़ा सा फेस है, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे से स्माइल है। और ये वर्क्स क्या दिखाता है कि जितने भी उस टाइम के आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके से इसके ऊपर काम किया था। मर जो मंदिर का जो मूर्ति है उसमें सुंदरता बढ़ा है और इसके जो सौंदर्य के कारण है वो उसकी बारीकी से किए गए इस पे काम है। इसमें दिखाया गया है कि जो लार्ज जो सन का इमेज है, सूरज का जो चित्र बनाया गया है वो एक फीमेल म्यूजिशियंस के द्वारा, फीमेल जो म्यूजिशियन है उस फिगर के पास में है। और इसमें जो मंदिर की क्वालिटी का जो डिफरेंट काइंड्स का जो फिगर्स है उसमें बनाया गया है। ये जो फीमेल म्यूजिशियन है इसका जो मूर्ति है वो एक सिमिलर काइंड का है। और ये जो फीमेल म्यूजिशियन का जो ग्रुप है वो छत पे पाया गया, मतलब कि टेरेस के बॉटम में बीचों बीच है और मिडिल टीयर्स में है। वो पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ और खुशी के साथ अपने प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रही है। उनका जो बॉडी है वो बोल्डली कार्व किया गया है और इनकी जो बॉडी की जो मूवमेंट्स है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूर्तियां जो है वो जीवंत हैं। और इसमें दिखाया गया कि जितनी भी मूर्तियां हैं वो अपने अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ है। जो सूरज सुंदरी है उन्हें ड्रम के साथ दिखाया गया है। उनका बड़ा सा चेहरा है, उस पे एक अच्छी सी मुस्कान है, साथ में उनका जो बॉडी का जो रिथमिक एक्शंस है, उनका जो लिम्स है, उनका जो हेड है वो थोड़ा सा झुका दिया गया है और उन्हें एक बहुत ही सुंदर सा ड्रम दे दिया गया है बजाने के लिए। इस मूर्ति को बहुत ही सॉफ्टली कार्व किया गया है और इनके जो जेवर है उनके ब्रेस्ट के बीच में है जो इनकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। और इसमें जो कर्व्स है वो एक अलग ही रिथम इस फिगर को प्रदान कर रहा है। और उसमें जो फोर्स है वो ड्रैप्टिस दिखा रहा है कि जितने भी मूर्तियां हैं उसकी पोस्चर एक अलग ही रिथम में है। एंड नाउ सी दिस इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 which you have to practice. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सारे इंडेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करें इस चैप्टर से। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। पहले कोशिश करें खुद से बनाने का, उसके बाद आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.